हाय एवरीवन। सो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि विल फिगर आउट कि ये जो हम डिस्कस कर रहे थे कि इवन इफ योर व्यू इज करेक्ट और योर व्यू इज रॉन्ग, यू विल स्टिल एंड अप मेकिंग सम मनी और लूजिंग सम मनी. That is the actual thing which happens in option. That if you are an option seller, even if your view is wrong to a certain extent, you may end up gaining some money. And if you are an option buyer, even if your view is right, but it is right only in a minute way, or you are correct, but or partially correct, or correct for few points, you may not end up making money. So we need to understand how option premiums they work. एंड क्या रैशनल है कि ऑप्शन प्रीमियम्स किस तरीके से काम करते हैं, वो समझने के लिए हमको ऑप्शन ग्रीक्स समझना जरूरी है. इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर ऑप्शन ग्रीक्स, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑप्शन ट्रेडिंग एंड देन you will be able to understand how option trading works. So let's start the discussion. If you can see on the screen, we'll just go to option strategy builder. We'll go to create your own strategy. Now we have option chain over here, right? Yesterday when we were discussing this, right? In the previous chapters when we were discussing this, that 150 rupees is the call premium, 122 rupees is the put premium, right? So we were discussing this. Now over here we have LTP and then you have Greeks also, okay? So this 150 rupees is the actual price, but how this price arrives is because of this. Now every line item, delta, theta, vega, gamma, and then there is something called rho also. What does it imply? I'll try to explain you that in detail, but your focus should keenly be on delta and theta. They are the most important thing you should be aware about while trading option. Let's discuss delta. Delta in a normal scenario means X is moving from 100 to 120. Means an option premium is moving from 100 to 120. What will be the change in the underlying index? Or to trigger a movement of say 10 points in an option premium, what should be the underlying movement in the index? Or vice versa, that Nifty कितना point move करेगा तो option premium कितना point move करेगा. ठीक है? So इसको समझने के लिए you have to first see the numbers. अगर आप numbers को देखेंगे तो 25,450 पे delta is 0.56 एंड 450 का पुट ऑप्शन पे इट इज 0.45. इसका सिंपल इंटरप्रिटेशन ये है दैट से निफ्टी फ्रॉम 25,450 इट मूव्स 100 पॉइंट्स. तो अगर वो 100 पॉइंट मूव करेगा तो कॉल प्रीमियम 0.56 के फैक्टर से इंक्रीज करेगा, यानी कि 56 पॉइंट इंक्रीज करेगा. सिमिलरली if market goes down by 100 points, put premium will increase by 0.45 factor, means it will increase by 45 points. Okay? डेल्टा क्या बताता है कि अगर 100 पॉइंट्स मान लो मूवमेंट हुआ तो इंडेक्स का अंडरलाइंग अगर 100 पॉइंट मूवमेंट हो रहा है तो ऑप्शन प्रीमियम कितना मूवमेंट होगा, ये बताता है डेल्टा. डेल्टा ऑफ एट द मनी इज 1. कॉम्बाइंड डेल्टा इज 1. इट मींस सम ऑफ कॉल एंड पुट ऑप्शन एट एनी स्ट्राइक प्राइस, sum of delta of call and put option at any strike price will be 1. Yes, for a brief while it can be 1.01, 1.02 or 0.99, but eventually the sum at any strike price will be 1. Means say if you want to calculate delta of 25,000, okay, you will see over here the delta is shown as 1 and put side delta is 0.11. okay, so if you see over here the combination of this delta is 1.1, but as I said, for a brief while it can remain in that way, but at the expiry the combination of delta will be 1.
मतलब कि दोनों डेल्टा, कॉल एंड पुट दोनों का डेल्टा अगर हम जोड़ देंगे तो इट विल कम टू 1। एट द मनी पे अगर आप नोटिस करें तो एट द मनी पे देखिए 0.56 प्लस 0.45, अगर ये डेसिमल्स और बढ़ाएंगे तो हमको इवेंचुअली दोनों का सम मिलेगा 1। यहाँ पे क्या है 0.6 टू 0.39, 1.01 हो रहा है, ठीक है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो रहेगा डेल्टा का एट 25,500 इट इज 0.5 0.5, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हमेशा जोड़ के 1 आएगा। सो एट द मनी पे डेल्टा इज 1। द मोर यू गो इन द मनी, जैसे देखिए ऑप्शन चेन है तो मार्केट 25,450 पे है, तो कॉल में जितना भी स्ट्राइक प्राइसेस 25,450 के नीचे हैं दे आर इन द मनी स्ट्राइक प्राइसेस। ओके, मार्केट अगर 450 पे है एंड उसके नीचे जितना भी कॉल का स्ट्राइक प्राइस है लाइक 25,400, 25,200, 250, 300, ऑल दीज आर इन द मनी ऑप्शन। तो एक गोल्डन रूल याद रखिएगा, जितना आप इन द मनी जाएंगे उतना आपका डेल्टा बढ़ते जाएगा, एंड जितना आप आउट ऑफ द मनी जाएंगे, आउट ऑफ द मनी मतलब जैसे मान लीजिए मार्केट अभी 25,450 पे है तो 25,500, 450, 600, 650, आप देखिए कंसिस्टेंट डिक्लाइन है डेल्टा में 0.55, 0.44, 0.32, यानी कि सिर्फ जैसे 25,800 का डेल्टा है 0.19। ओके, इट मीन्स कि इवन इफ मार्केट मूव्स 100 पॉइंट, वो ऑप्शन का प्रीमियम 19 पॉइंट ही मूव करेगा। दैट इज व्हाट डेल्टा इज फॉर यू, कि अंडरलाइंग में कितना मूवमेंट होगा तो ऑप्शन प्रीमियम में कितना मूवमेंट होगा। अगर अंडरलाइंग में 100 पॉइंट मूवमेंट होता है तो ऑप्शन प्रीमियम इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे अगर से 25,500 पे डेल्टा 0.5 मींस इफ ऑप्शन अंडरलाइंग मूव्स बाय 100 पॉइंट, मान लीजिए निफ्टी 100 पॉइंट मूव करता है तो ये ऑप्शन का प्रीमियम 50 पॉइंट मूव करेगा। दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेल्टा। सो अभी जो हम देख रहे थे, मान लीजिए कोई ऑप्शन बायर है एंड उसने मान लीजिए कॉल ऑप्शन बाई किया, ओके, थीटा डिके एंड ऑल इट विल टेक टाइम टू हैपन, बट इन द मीनवाइल उसने 150 का से एट द मनी कॉल ऑप्शन बाई कर लिया एंड निफ्टी मूव्स 60 पॉइंट्स, तो एज पर डेल्टा उसका मूवमेंट कितना होगा 60 पॉइंट्स इनटू एट द मनी पे कितना था 0.56, राइट। तो ऑलमोस्ट 33 पॉइंट्स उसका इंक्रीज हो सकता है प्रीमियम। तो उसको अगर टारगेट लगाना है तो 150 पे वो टारगेट किस हिसाब से लगाएगा कि मैक्सिमम गेन उसका पॉसिबल इज 33-34 पॉइंट्स। तो ये हो गया डेल्टा का कैलकुलेशन आपके लिए, ओके। एंड इसके बेसिस पे आपको वो कैलकुलेशन लगाना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए मार्केट मूव कर गया, बिकॉज क्या होता है देखिए, आप जब ट्रेड कर रहे होंगे तो आप निफ्टी पे ट्रेड कर रहे होंगे, तो मान लीजिए आपको दिख रहा है निफ्टी यहाँ से 60 पॉइंट्स ऊपर जा सकता है, तो अकॉर्डिंगली ऑप्शन प्रीमियम 34-35 पॉइंट्स ही मूव करेगा, नॉट मोर देन दैट। तो आपका टारगेट इट शुड नॉट बी 60 पॉइंट्स, इट शुड बी बेस्ड ऑन द डेल्टा। तो 150 से आपका टारगेट बिकम 180। 150 आपने बाई करा, 180 शुड बी योर टारगेट। इन दिस वे वी यूज डेल्टा टू फिगर आउट आवर टारगेट्स। अगर आपको टारगेट मिल रहा है ओनली ऑफ 30 या 34 पॉइंट्स, तो आपका एसएल कितना होना चाहिए? अगर 1:1 रिस्क रिवॉर्ड भी मेंटेन करना हो तो हमारा एसएल होना चाहिए 30 या 34 है तो 15 to 17 पॉइंट से ज़्यादा हमारा एसएल नहीं होना चाहिए। मीन्स माई एसएल शुड बी अराउंड 130, 132, 133, यही मेरा ऑप्शन का एसएल होना चाहिए, बिकॉज तभी मेरा 1:1 का 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन रहेगा। एंड कंसिस्टेंट बेसिस में अगर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन है, मोस्ट लाइकली यू विल एंड अप इन अ बेटर सिचुएशन देन इफ यू हैव अ रिस्क रिवॉर्ड ऑफ से 1:1। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेल्टा। इन सिमिलर वे वी हैव थीटा कैलकुलेशन। ठीक है, अब थीटा का कैलकुलेशन मैं आपको समझा देता हूँ। से 25,450 में मार्केट है, थीटा ओवर हियर रिटन इज 16, से वी डेल्टा एट कॉल वाज 16, पुट इज 450 पे डेल्टा कितना है 11। ओके, नाउ ये जो 16 एंड 11 लिखा हुआ है ना, ये क्या है? अगर आपको नोट याद होगा तो हमारा एट द मनी पे प्रीमियम कितना था? हमारे एट द मनी पे अगर लास्ट ट्रेडेड प्राइस का प्रीमियम था 150 एंड 120, तो अभी एट द मनी पे 150 पॉइंट प्रीमियम है, यहाँ पे 122 पॉइंट प्रीमियम, राइट? ओके, एंड दिस एक्सपायरी इज ऑन थर्सडे एक्सपायरी, एंड दिस डेटा इज फ्राइडे एंड ऑफ डे। ओके, थर्सडे एक्सपायरी का, फ्राइडे ईओडी का डेटा ये है। ओके, नाउ ऑन थर्सडे मार्केट विल हैव सम प्रीमियम फॉर इट। तो ऑन थर्सडे यूजुअली कॉल में प्रीमियम 60 दोनों साइड प्रीमियम रहता है एट द मनी पे। नॉट दिस इज नेचुरल कोर्स।
कि 60 पॉइंट्स रहेगा। सो अगर हम फ्राइडे एंड ऑफ द डे पे हैं एंड 60 पॉइंट्स प्रीमियम हमारा है आपके कॉल साइड में ऑन थर्सडे, यानी कि ये जो 150 पॉइंट्स प्रीमियम है दिस इज सपोज टू डिके फ्रॉम सैटरडे टू वेडनेसडे, यानी कि इसको 5 डेज में डिके करना है। 5 डेज में इसको डिके करना है, तो इफ यू डिवाइड दिस बाय 5 यू विल गेट 18 वो ईयर। पर डे डिके हमको कितना मिल रहा है? पर डे डिके हमको मिल रहा है 18 पॉइंट्स, बिकॉज हमारा जो कैलकुलेशन है इट सेज एक एक दिन में डिके ज्यादा होगा। एंड डिके का कर्व जो होता है ना, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, ये कर्व लीनियर होता है, यानी कि स्टार्टिंग में धीरे धीरे डिके करेगा, जब टाइम बहुत कम बचेगा तो बहुत शार्पली डिक्लाइन करेगा। ओके, सो 18 इज द एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स पर डे मार्केट शुड एक्चुअली हैव टाइम डिके। ठीक है, बट क्या 18 लीनियर है? नहीं, जब टाइम ज्यादा है, लाइक अगर हम ये फ्राइडे एंड ऑफ द डे पे देख रहे हैं तो 16 दिख रहा है। वाई? बिकॉज अभी टाइम 5 दिन बचा है, बट वेडनेसडे को ये 20 भी डिके होगा, थर्सडे को ये एंटायर 60 डिके हो जाएगा। सो ये बेसिकली जो चीज हो गया ना, इसी के कारण क्या होता है कि आपको आज ये 16 दिख रहा है, एवरेज 5 डे का डिके निकालेंगे तो आपको 18 दिखेगा। वाई? बिकॉज टुवर्ड्स द एंड ये 20 पॉइंट्स 22 पॉइंट्स भी डिके होगा पर डे। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यही सारा कैलकुलेशन यहां पे लगाएंगे तो आप नोटिस करो कि नेट डिफरेंस 62 पॉइंट्स का बचा, पर डे डिके एवरेज में आ रहा है 12.4। तो आज ये 11 दिख रहा है, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ एक्सपायरी ये तो 20 पॉइंट्स भी पर डे डिके करेगा, तो उसी का एवरेज निकल के आ रहा है आपका 12 पॉइंट। तो एवरेज डिके आपको कैलकुलेट हो गया। मींस अगर आप 1 फुल डे ऑप्शन होल्ड करते हो, मान लो कॉल ऑप्शन होल्ड करते हो, तो विदाउट एनीथिंग हैपनिंग, मैंने ये आप लोग को याद होगा, मैंने यहाँ पे ऊपर में लिखा था इन द प्रीवियस चैप्टर दैट इफ यू बाई कॉल ऑप्शन, इफ मार्केट डजंट मूव ऑल्सो यू विल एंड अप लूजिंग मनी, बिकॉज ये जो 18 पॉइंट सीटा डिके है, अगर मार्केट मूव नहीं करता है तो भी आपका लॉस करके जाएगा। सिमिलरली फॉर पुट ऑप्शन आपको लॉस करके जाएगा इतना पॉइंट, बेयर मिनिमम, इवन इफ मार्केट इज नॉट मूविंग तो इतना लॉस हो जाएगा बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू डिके। सो हमारा फोकस क्या है? लॉस को रिड्यूस करने का। अब लॉस को रिड्यूस करने का तरीका क्या है? ये फुल डे के लिए इतना है, तो इफ आई हैव ए शॉर्टर ड्यूरेशन ट्रेड, से 1 आवर या 15 मिनट्स या 20 मिनट्स का ट्रेड है, तो क्या ये फुल डे का इंपैक्ट मुझे फेस होगा? नहीं होगा, वो प्रो रेटा बेसिस पे थोड़ा सा मेरे को फेस होगा, से 2-3 पॉइंट्स फेस होगा। इफ आई एग्जिट ट्रेड इन से हाफ एन आवर, तो हार्डली वो 2-3 पॉइंट का इंपैक्ट मेरे को देगा। तो ऑप्शन बायर शुड बी क्विक एनफ टू एग्जिट देयर ट्रेड, दे शुड नॉट बी सिटिंग ऑन देयर ट्रेड्स। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब थीटा का कैलकुलेशन आपको समझ में आया, हाउ थीटा वर्क्स अगेंस्ट ऑप्शन बायर्स, बिकॉज ऑप्शन सेलर के पास यही एडवांटेज है कि उसको थीटा डीके मिलते रहेगा, बिकॉज ही इज सिटिंग ऑन द ट्रेड, ही हैज सोल्ड ऑप्शंस। ऑप्शन बायर्स के अगेंस्ट ये काम करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ अनदर ग्रीक वी हैव इज वेगा। वेगा इज व्हाट? वेगा इज वॉलेटिलिटी इंडिकेटर, मींस मार्केट में अभी वॉलेटिलिटी कितना है। ठीक है, अगर हम बात करें, ये जो वेगा करंटली चल रहा है 12, 11.99, 11.8588, दीज आर नॉट हाई वेगा, मतलब ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है। अगर ये 14-15 इस रेंज में होता, वी वुड हैव सेड कि मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल है, प्रीमियम्स बहुत वॉलेटाइल है, वो वॉलेटिलिटी का मेजर हो जाता। सिमिलरली गामा इज बेसिकली द रेट एट विच ऑप्शन प्रीमियम विल चेंज व्हेन द स्ट्राइक प्राइस चेंजेस। सो होता क्या है कि मार्केट 25,450 से जब 100 पॉइंट मूव करता है, तो वी आर कैलकुलेटिंग दैट 56 का डेल्टा है, 0.56 का डेल्टा है, तो इट विल ऑप्शन प्रीमियम विल इंक्रीज बाय 56 पॉइंट। बट जब वो 450 से 550 जा रहा है, तो 450 तो इन द मनी ऑप्शन बन जा रहा है ना। अगर आप यहाँ पे 2 स्ट्राइक प्राइस इन द मनी का देखोगे तो आपको दिखेगा कि डेल्टा हैज इंक्रीज फ्रॉम 0.56 टू 0.68 ओवर हियर, राइट? तो हम तो अभी 56 ही कैलकुलेट कर रहे थे पॉइंट्स, बट गामा इफेक्ट ये आएगा कि द रेट ऑफ चेंज विल बी हायर, इंस्टेड ऑफ 56 इट विल हैव say 60 points, 62 points. This extra premium which we are getting is because of gamma. Gamma is basically the rate of change in delta. ठीक है, तो अब डेल्टा अभी तो देखिए एट द मनी पे 0.56 है, बट जैसे ही 550 मार्केट गया तो ये तो इन द मनी बन गया। तो फिर क्या अभी आप कंपेयर करो कि इन द मनी 100 पॉइंट्स इन द मनी का डेल्टा कितना है? 0.68 है, यानी कि यहाँ पे डेल्टा थोड़ा सा बढ़ के आपको मिलेगा, एंड दैट इज ट्रिगर्ड बाय गामा। एंड इफ देयर इज वेरी फास्ट चेंज इन द स्ट्राइक प्राइस, मतलब सडन जंप करके मार्केट 450 से 500,
500 से 550 एंड थिंग्स लाइक दैट। तो क्या होगा जब ये सडन जंप हो रहा है ना, उस समय क्या आपको दिखेगा? उस समय आपको दिखेगा कि दिस गामा इज इंक्रीजिंग विद ए वेरी हैवी रेट, एंड दैट इज कॉल्ड गामा ब्लास्ट। We have another option Greek called rho. Rho is basically factor of the interest rate. ठीक है, तो कंट्री में जो इंटरेस्ट रेट वगैरह चल रहा है वो होता है बेसिकली रो। तो अगर रो इंटरेस्ट रेट ऑफ द कंट्री इज इंक्रीजिंग, ऑप्शन प्रीमियम्स विल इंक्रीज. इफ द इंटरेस्ट रेट ऑफ द कंट्री इज डिक्लाइनिंग, ऑप्शन प्रीमियम्स विल डिक्लाइन. Higher the volatility, higher the premium, higher the gamma, higher will be the premium. Higher the delta, more movement is possible in the market, and higher the theta, bigger the risk for the option buyers. In the next chapter, we will cover the topic called volatility and what is the actual use of it and how traders are using it. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.